start. Yesterday I have given all formulae for this application of derivative. Now just let me explain. First topic I am beginning here. That is a rate of change. Start right everybody. A rate of change of quantity. Rate of change of quantity. So what is a rate? Beta, rate means one time differentiation. Now listen. So let me give definition first. Let y equal to f of t is a real valued function. Beta, start right everybody. A real valued function. A real valued function defined on given interval. Defined on given value or given interval. Defined on given interval. Given interval. Then its rate of change is dy by dt. जो whatever the variable, this rate always changing with respect to time. In case if they say variable radius, then with respect to r you have to differentiate. So dy by dt equal to, we will get f dash of t at t equal to whatever the value they have given at t equal to something. So that is called a rate of change of y with respect to time t. C means rate of C. I am giving one note here. Rate of change of radius means dr by dt. अच्छी तरह सुन लेना बेटा. Rate of change of volume means dv by dt. A radius is increasing at the rate dr by dt. Surface is decreasing. Decreasing मतलब नेगेटिव में आता है ds by dt. Volume is increasing at the rate dy by dt. Y is changing as fast as x मतलब dy by dx. So मतलब whatever the changes, change means one time differentiation with respect to given variable. Now see rate or otherwise increasing. Increasing मतलब positive होता है बेटा. Increasing or otherwise decreasing. Decreasing मतलब negative होता है. Decreasing. Rate I'm saying rate of change of increasing, rate of change of decreasing, or otherwise as fast as, or otherwise marginal. मतलब आपने इकोनॉमिक स्टूडेंट है, आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कास्ट, रेवेन्यू कास्ट. So marginal cost, rate of change of marginal cost rate, leave it. Marginal cost means that is dc by dt. Marginal revenue means dr by dt. So marginal का मतलब one time differentiation. Marginal or otherwise with respect to, that means all means with respect to, that means one time differentiation. One time differentiation with respect to given variable. With respect to given variable. So that's how I told you better, given variable. Now what I told you, that is a rate of change of volume मतलब dv by dt. Rate of change of surface ds by dt. Rate of change of curved surface ds by dt. Rate of change of perimeter dp by dt. Now I am writing here unit. So note again I am giving another note number 2. Unit of, that is rate of change of volume. Rate of change of volume. Rate of change of volume. That means मैंने क्या बताया dv by dt. इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट का क्यूब पर सेकेंड. इन केस पर सेकेंड गिवन है पर सेकेंड, पर मिनट गिवन है पर मिनट, पर आर गिवन है पर आर, वॉट एवर पर रेडियस की अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करोगे. यहाँ पे जो रेडियस का यूनिट है वो आ जाएगा. इन केस वॉल्यूम और देन रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका यूनिट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस. सरफेस मतलब आइदर कर्व्ड सरफेस हो और टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू एरिया. आ गया ना, सरफेस तो छोड़ दो, कोई भी एरिया आ गया ना बेटा, उसका यूनिट क्या बनता है? यूनिट का होल स्क्वायर पर सेकेंड बनता है, पर सेकेंड. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड. साइड मतलब पेरीमीटर और अदरवाइज लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, व्हाटएवर. सो दैट इज इक्वल टू जो यूनिट का पर सेकेंड आता है. ये यूनिट ना लिखोगे ना, देन दे विल डिडक्ट 1 मार्क. मान लो 1 मार्क क्वेश्चन हो, पूरा मार्क्स लॉस हो जाएगा आपका. यूनिट नहीं लिखोगे. 4 मार्क क्वेश्चन हो, दे विल डिडक्ट हाफ मार्क. सो यूनिट लिखना लास्ट में बहुत जरूरी है. सो सिंपली आपको ये कंक्लूजन दे रही हूँ. रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है बेटा? वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. आर यू क्लियर? से यस नो बच्चे. Yes, ma'am. Yes, write down better fast, hurry up.
हम कैमरा को थोड़ा लेफ्ट में कर दो। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट। अब देखो बेटा, यस मैम, यस, ड्राई डाउन फास्ट। यस बेटा, मैम लास्ट में क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड। साइड मीन्स पेरीमीटर हो सकता है, सर्कमफ्रेंस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, विड्थ हो सकता है, ठीक है ना। साइड है बेटा, साइड। ओके मैम। हाँ, हैव रिटन एवरीबॉडी? बेटा थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे। नीचे का मतलब करना वाली पॉइंट्स। ठीक है बेटा। यस बेटा, बच्चे थोड़ा फास्ट करने पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा, हाँ थोड़ा फास्ट लिखो। Now take your NCERT book, beta. Please, everybody keep with you book. Without a book, you cannot do at all. Actually, this complete chapter, I ask you only, through you only I take answer. But at this time, you are sitting in the screen. I cannot do anything. If you are able to give an answer, I am very much happy. Clear? So simple formula I will ask you. So tell me answer. Don't give any single student. You start speak. Then I can do it very thoroughly these questions. Now see beta, question number 1. Take it NCERT book, page number 197, exercise 6.1, one of the most important exercise. Now question number 1. Find rate of change. Rate of change means one time differentiation. Find rate of change of area of circle. Area of circle का rate, इसका मतलब क्या होता है? Circle originally कुछ होगा, कोई भी सपोज मान लो कोई भी किसी को हीट करने से वो क्या होता है, उसका एक्सटेंड होता है, उसके एक्सटेंड होता है ना, वही सम चेंजेस हो रहा है एज पर टाइम। ओके, सो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1, दे आर आस्किंग DA बाई विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। वेरी क्लियर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोला बेटा, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर, मतलब DA बाई DR दे आर आस्किंग when r equal to 3 सेंटीमीटर। मैं पहला पार्ट कर रही हूँ, दूसरा पार्ट आप होमवर्क में करना। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल बेटा? व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? pi r square. Well done, pi r square. Now we need DA by DR, that is equal to, with respect to r given, that's why I am doing with respect to r. DA by DR equal to simple differentiation, r square differentiation is what? 2r into r का differentiation dr by dr 1 हो जाएगा, क्योंकि with respect to r कर रहे हैं, so simple 2 pi r हो जाएगा। Now r का वैल्यू given है 3, substitute करूंगी, that is equal to 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर रेडियस का किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसी का यूनिट लिखना है। वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन हियर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, उसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये को कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आपका चॉइस। सो सेकंड पार्ट आप कर लेना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, अब धीरे धीरे पढ़ूंगी क्वेश्चन, आप लोग भी समझना है। This is one of the most important question. The volume of cube is increasing at the rate. Increasing मतलब पॉजिटिव बताया, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव बताया। The volume of cube is increasing at the rate centimeter cube per second. बेटा what is given?
यूनिट दे के भी बता सकते हैं बेटा. व्हाट इज गिवन? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट. व्हाट इज गिवन? dv by dt विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड्स दे रखा बेटा, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dv by dt इक्वल टू व्हाट इज गिवन? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट सरफेस, हम सरफेस लेते हैं, यस. हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of edges is 12 centimeter. They are asking ds by dt. मैम लेफ्ट का नहीं दिख रहा. हाँ बेटा, मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट में फोकस कर दो मैम, दिख नहीं रहा है. आप देखो. हाँ बेटा, मैम थोड़ा सा और कर दो मैम, बस मैम. ओके. नाउ लिसन. सो क्या बताया क्वेश्चन नंबर 2 में? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग? ds by dt दे आर आस्किंग. वेन लेंथ हम लेते हैं एज का, a ले लेते हैं, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है बेटा? मान लो क्यूब का कोई भी चेंजेस हो रहा है, उसका वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. जब चेंज हुआ ना तब उसका साइड क्या था? 12 सेंटीमीटर. जब चेंज, ओरिजिनली हमें नहीं पता, जब चेंज हुआ उसका क्या था? 12 सेंटीमीटर तक पहुंच गया. उसका सरफेस में क्या चेंजेस आया ये निकालना है. ये किसका वॉल्यूम बताया? क्यूब का. क्यूब का वॉल्यूम क्या है बेटा? क्यूब का वॉल्यूम क्या है बेटा? ए क्यूब. v इक्वल टू ए क्यूब. इधर देख, अब डिफरेंशिएट कर रही हूँ. dv बाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है. dv बाई dt दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे डिजाइन किया? यहाँ यूनिट दे के डिजाइन करते हैं बेटा. सो 3a स्क्वायर इंटू da बाई dt. मतलब अब मैं क्या निकाल रही हूँ यहाँ से? हमें निकालना ds बाई dt, बट da बाई dt निकालूंगी क्योंकि जब ये 12 सेंटीमीटर आया ना, उसी साइड में भी तो इंक्रीज हुआ. वो साइड क्या इंक्रीज हुआ? उसका रेट निकाल रही हूँ, उसका स्पीड निकाल रही हूँ. a का वैल्यू गिवन है आपके पास 12, यहाँ पे रखी हूँ. सो dv बाई dt गिवन है, दैट इज 8. दैट इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू a का वैल्यू गिवन है आपका 12. सो 12 का स्क्वायर इंटू da बाई dt, वो मुझे निकालना है. da बाई dt implies da by dt equal to what we are getting बेटा? 8/3 into 144. 3 into क्या आ रहा है? 144 सेंटीमीटर. ये साइड है तो सेंटीमीटर पर सेकंड. आप सिंप्लीफाई करके लिखना है, बेशक सिंप्लीफाई करके लिखो, वो आपका चॉइस है. अब लेकिन एज पर क्वेश्चन ds by dt निकालना है. व्हाट इज सरफेस? मतलब टोटल सरफेस अंडरस्टूड. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. करोड़ मतलब करोड़ गिवन होगा. हाँ 6a स्क्वायर. yes exactly, well done. 6a square. this implies इसको डिफरेंशिएट करूँ ds by dt that is equal to 12a into differentiation of a da by dt. we have all value ds by dt that is equal to 12 into a value we have 12 into da by dt we have 8/3 into 144. Now 12 144 this will be cancelled, so that is equal to 8/3. साइड है सेंटीमीटर, सरफेस है सेंटीमीटर स्क्वायर, पर क्या है? टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बेटा इसका फिनिशिंग कैसे देना होता है? ये पॉजिटिव आया ना, देयरफॉर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. पॉजिटिव हो, इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग at the rate 8/3 सेंटीमीटर. ये फिनिशिंग होता है बेटा. इस 4 मार्क क्वेश्चन में इनकेस आ गया, ये ना लिखोगे ना, दे विल डिडक्ट हाफ मार्क. ये बात को ध्यान रखना. सो एंडिंग में ये लिखना जरूरी है. देयरफॉर सरफेस पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग डाल दो, नेगेटिव आ गया डिक्रीजिंग लिख दो. देयरफॉर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स. आर यू क्लियर? नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 3. लेट मी एक्सप्लेन. कुछ क्वेश्चन तक मैं कंटिन्यूसली करती हूँ, देन फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हाट इज गिवन बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग. व्हाट इज गिवन? यस बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट. बच्चे आंसर तो दो. da by
dr ना बेटा रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वहां यूनिट भी देखना बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया वो तो एरिया गिवन होगा बेटा, आपको बताया होगा एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे वेरी क्लियर बताया रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट। How fast the rate at which the area of circle is increasing? क्या पूछ रहे हैं बेटा आपसे? How fast the area of circle is increasing? Yes, yes बेटा, क्या पूछ क्या रहे हैं आपसे? What they are asking question? dA by, बेटा आप बोल सकते हैं बच्चे, dA by dt when r equal to, इसमें दे रखा है रेडियस, when r equal to 10 centimeter. Now anyhow dA by dt they are asking what is area of circle? What is area of circle बेटा? pi r square. pi r square. इधर देख, अब डिफरेंशिएट करोगे dA by यहाँ पे कर देती हूँ, this implies dA by dt, dA by dt that is equal to dA by dt, that is equal to what we will get it, that is 2 pi r into dr by dt. Now that is dA by dt, that is equal to 2 into pi into, instead of r is 10 into dr by dt given 3, so that is equal to 20, 60 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या आएगा, सेकंड आएगा। आर यू क्लियर? समझ आए बच्चे? यस नो? Yes ma'am. Yes. Now see question number 4 पढ़ लेना बेटा। An edge of variable cube is increasing at the rate. An edge of variable cube is increasing at the rate 3 centimeter per second. What is given बेटा? Side ले लो, edge A ले लो, small a. So क्या given है? बेटा बोलो। बोलो यार, आंसर तो यार dA नहीं बेटा, देखो एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एज मतलब क्या होता है, साइड होता है, साइड इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट दे रखा है, मतलब साइड हम ये लेते हैं dA by dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। सो क्या पूछ रहे हैं बेटा आपसे, हाउ फास्ट, फास्ट मतलब चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्या पूछ रहे हैं आपसे? dv by dt. Yes, dV by dt they are asking। देखो बेटा when उसमें दे रखा है एज a इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। नाउ किसका वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है? क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या है बेटा? ये क्यूब, यस एग्जैक्टली। अब आप करोगे dV by dt इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA by dt आएगा, dA by dt गिवन है, a का वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो यू विल गेट आंसर। सो दिस इज होमवर्क। ओके फाइन, नाउ यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा, फास्ट हरी अब बच्चे, थोड़ा फास्ट करो। Do fast. Done बेटा?
यस बच्चे, डू फास्ट बेटा। डन बेटा, यस हाँ मैम। बेटा डू फास्ट बच्चे। Yes, डन मैम। done. Okay, fine. Now see बेटा, everybody start read question number 5. बच्चे see ये topic आप in case that's again I'm saying, आप सामने होते हो, आप पढ़ते हो क्वेश्चन को आंसर देते हो, अब वो पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है तो प्लीज आप रीड आउट देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। नाउ सी दिस आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर विच वन, 5 बेटा, 5 है ना, 5। Fifth question, first read the question thoroughly. A stone is dropped into quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed areas increasing? जस्ट प्रैक्टिकली आप सोचो, एक क्वाइट लेक है, मतलब लेक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसमें एक स्टोन को ड्रॉप करो, क्या होता है आप प्रैक्टिकली सोचो, एक सर्कल फॉर्म होता है। सर्कल क्या होता है, पहले फास्ट ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फिर जब उसका स्पीड खत्म होगा सर्कल वैनिश हो जाता है। जब सर्कल इंक्रीज होता है उसका रेडियस भी इंक्रीज होता है, उसका एरिया भी इंक्रीज होता है, यही दो चीज़ होता है, एक रेडियस होगा एक एरिया होगा, ठीक है ना, और सरकमफ्रेंस होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं बेटा, व्हाट इज गिवन फॉर एज पर फर्स्ट सेंटेंस, यूनिट दे के भी आप बता सकते हो। ये स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. What is given? क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में? dr by dt। Exactly, well done बेटा। dr by dt that is equal to 5 centimeter per second. Okay, fine. At the instant when the radius of circular waves, जब उसका रेडियस इंक्रीज हुआ ना 5 सेंटीमीटर तक रेट उसका बढ़ा है, तब उसका क्या बता रही है, when radius is 5 से 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर तक चला गया, how fast enclosed area is increasing, एरिया कितने इंक्रीज हुआ, क्या क्वेश्चन में पूछा है बेटा, क्या क्वेश्चन में पूछा है, बोलो। What dA by dt। Well done, exactly, dA by dt when r equal to what they have given here, the when r equal to 8 centimeter, when r equal to 8 centimeter. What is area of circle बेटा, आप करोगे homework, this is a homework, let me explain. What is area of circle? Pi r square, है ना, डिफरेंशिएट करोगे dA by dt, या dA by dt equal to 2 pi r into dr by dt, dr by dt given है, r given है, substitute, then area लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर seconds. Okay, clear? So do it. This question number 5 is a homework. Now take it to question number 6. Now the radius of circular, 6 also homework है बेटा, this is also homework. Let me read, आप भी पढ़ो क्या given है। The radius of circle is increasing at the rate 0.0 centimeter per second. What is given beta? What is given? A radius is increasing at the rate. What is given? बच्चे what is given? dr by dt। Well done बेटा, dr by dt बेटा, सिर्फ एक स्टूडेंट आंसर में ना दे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप स्टार्ट स्पीक तभी मैं समझ सकती हूँ आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। dr by dt equal to 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase in circumference? Circumference का c मानते हैं, they are asking dc by dt, dc by dt. circumference क्या है बेटा सर्कल का, बच्चे circumference, yes बेटा,
circumference of circle 2 pi r. 2 pi r, yes 2 pi r. Now differentiate करेंगे dc by dt equal to 2 pi into dr by dt given a substitute, then unit लिखो, you will get answer. Now I am taking question number 7. This is also homework I told you. Question number 7, one of the most important question. The length of x rectangle is increasing at is decreasing at the rate. Decreasing मतलब नेगेटिव बताया. एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है. लेंथ भी गिवन है, x गिवन है बेटा. सी dx by dt equal to -5 centimeter per second given. Now next one they are saying, next sentence पढ़ो. And the width y is increasing at the rate 4 centimeter. मतलब dy by dt equal to given है आपका 4 centimeter पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ले लिया. Now what they are saying, when x is equal to 8 centimeter, when x is equal to 8 centimeter and y equal to how much given 6 centimeter, find the rate of change of perimeter. मतलब dp by dt they are asking, and then find the rate of change of area of rectangle. मतलब dA by dt they are asking. Anyhow, what is perimeter of rectangle बेटा? I am doing this question. What is perimeter of rectangle? बच्चे fast बेटा please. What is perimeter of rectangle? Yes, exactly. N plus b means x plus y. X plus y. Now dp by dt. Now that is equal to 2 into x का differentiation dx by dt plus y differentiation is dy by dt. Now that is equal to 2 into dx by dt given है आपका -5 and then plus dy by dt given है +4. That is equal to finally we are getting -2 centimeter. माइनस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. पेरीमीटर है 2 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे एंडिंग आंसर देना है. देयरफॉर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग. ये ना लिखाना मतलब ही नहीं बनता बेटा. पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट. हर क्वेश्चन में आपको लिखने पड़ेगा डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आर यू क्लियर? नाउ नेक्स्ट दे आर आस्किंग सेकेंड पार्ट dA by dt. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेटा? Sorry, area of rectangle. What is area of rectangle? बेटा immediate answer दो बच्चे. L into b. Yeah, that is x and y. Say x and y यार. X given, y given. Now dA by dt. बेटा very carefully how to do differentiation. Now keep x as a constant product rule. Y differentiation dy by dt plus y keep constant and x differentiation is dx by dt. All values are given here. Therefore dA by dt that is equal to dA by dt equal to x given आपके पास. How much given x? X is 8 centimeter. So 8 into dy by dt given 4. So that is a 4 plus y given आपके पास y is given 6 into dx by dt given है आपके पास -5. Now that is equal to this we are getting 32 minus 30 32 minus 30 that is equal to 2 centimeter. area है 2 centimeter per second. Therefore what area is increasing? Area is increasing at the rate. Area is increasing at the rate. ये हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिख रही हूँ. At the rate 2 centimeter square per second. ये होता है क्वेश्चन का हर बार फिनिशिंग. Now see next question बेटा. That is question number 8. This is a homework. Let me explain. You have to do it your own. क्वेश्चन पढ़ना है बेटा. आप लोग को बताओगे, प्लीज बता देना इमीडिएट आंसर मुझे. आप भी पढ़ो. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. यूनिट देखे भी आप बता सकते हो. एक बलून में एयर फिल करेंगे क्या बढ़ेगा? सो व्हाट इज गिवन? Ma'am, dV by dt. Well done बेटा, well done. dV by dt is equal to what is given 900 centimeter cube per second. Okay, this is one of the most important repeated question. Find the rate at which the radius of a balloon is increasing when radius equal to 15 centimeter. What they have given beta? What they are asking? Yes beta. dr by dt. Yes, dr by dt they are asking.
when r equal to what is given 15 centimeter. Anyhow किसका वॉल्यूम है बेटा, किसका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम किसका है बेटा, ये स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है मैम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 yes 4/3 pi r cube. Then dv by dt आपको पता है dv by dt equal to 4/3 pi 3r square into dr by dt. r given है, क्या बोला मैंने, इसका डिफरेंशिएट करोगे 4/3 pi 3r square into dr by dt. dr by dt given है, r वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो. कर लोगे होमवर्क में ये क्वेश्चन, से यस. So write down beta. हाँ, write down, note down fast, note down fast, hurry up. बेटा तुम फास्ट, डू फास्ट, ओके. बच्चे डू फास्ट, टाइम इज रनिंग. यस बेटा, जगह मत करना भी. अच्छा थोड़ा फास्ट करो बच्चे. डन बेटा. Yes. Done, ma'am. Yes. Now see beta question number 9. 9 is also homework. Let me read question number 9. I will explain you. ये balloon which always remains spherical has a variable radius. इधर देखना बेटा, जब variable बता दिया ना, variable x है, variable radius है, इसका मतलब उसकी respect में differentiate करना है, ये बात को ध्यान रखना. So क्या बताया, balloon which always remains spherical has a variable radius. So मैंने क्या बताया, variable radius का मतलब with respect to r differentiate करेंगे. Find the rate at which its volume is increasing. They are asking dv by dr. Volume is increasing with respect to r. Understood? So find volume is increasing with radius when later. Later मतलब radius. Okay. Later मतलब later on radius 10 centimeter तक चला गया. That is question number 9. What they are asking, given क्या है बेटा, r equal to 10 centimeter. They are asking dv by
dr when r equal to 10 सेंटीमीटर। किसका ये वॉल्यूम है बेटा? किसका वॉल्यूम है? किसका वॉल्यूम है बेटा? विच वॉल्यूम? बच्चे फास्ट प्लीज। किसका वॉल्यूम? क्या शेप है बेटा क्वेश्चन में? स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 pi r cube। Yes, 4/3 pi r cube। Now differentiate करोगे dv by dr equal to 4/3 pi 3 r square into differentiation of r dr by dr 1 हो जाएगा। So leave it। So the r का value given है, substitute करो, you will get answer। Okay fine। Now question number 10, this is one of the most important question। ये लेडर 5 मीटर लीनिंग अगेंस्ट वॉल। इधर देखना बेटा, ये वॉल समझो, ये फ्लोर है, ठीक है, और ये रहा लेडर आपके सामने, ये 5 मीटर दे रखा है। हम ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड बॉटम ऑफ लेडर x मीटर ले लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर एंड हाइट ऑफ दिस लेडर ले लेते हैं y मीटर। डायग्राम समझ आना चाहिए आपको। क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, ये लेडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट वॉल। ओके, द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate 2 centimeter per second। See the bottom of ladder, ये pulled along the ground away from the wall। इसके आगे वॉल के अगेंस्ट इसको आगे खींचोगे, of course इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। So वही देखा, the distance is increasing at the rate। So what is given here बेटा? dx by dt equal to क्या given आपके पास? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब बॉटम को खींचोगे नेचुरली इसका हाइट रिड्यूस होगा, यही आपसे पूछेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ना, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग। नेचुरली जब बॉटम को पुल करोगे इसका हाइट डिक्रीज होगा। सो दे आर आस्किंग dy by dt डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव में रिजल्ट आना चाहिए। How fast is the height of wall is decreasing when foot of ladder जो distance है वो कहाँ तक चले गया? 4 मीटर तक चले गया। That is when x is equal to 4 मीटर। This is question। Okay fine। अब x 4 मीटर चले गया, y का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, रेट नहीं वैल्यू, उसका एक्चुअल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। When x is equal to 4, of course आप पाइथागोरस थ्योरम में जाओगे बेटा, x² plus y² equal to 25 गिवन है, x का वैल्यू रखोगे 16 plus y² equal to 25। This implies y equal to plus or minus 3 आएगा बेटा, बट प्लस माइनस नहीं ले सकते, 3 सेंटीमीटर लेंगे, मतलब सॉरी सेंटीमीटर नहीं है मीटर। और एक बात, रेट गिवन है सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है मीटर। इधर देखो हर लेंथ मीटर में गिवन है बेटा, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रेट हमेशा सेंटीमीटर में लिखो और लेंथ ऑलवेज मीटर में लिखो। नो नीड ऑफ चेंजिंग। आर यू क्लियर? इन केस मान लो आपके पास ये मीटर में दे रखा है, ये वाला लेंथ, ये सेंटीमीटर में दे रखा, तब कन्वर्ट करने पड़ेगा। यहाँ पे हर लेंथ मीटर में दे रखा है और जो रेट सेंटीमीटर में दे रखा है। जब रेट प्रेजेंट करोगे सेंटीमीटर में दे दो, लेंथ प्रेजेंट करोगे मीटर में दे दो। मैंने यहाँ पे लेंथ प्रेजेंट किया, मीटर लिख दिया। अब दे आर आस्किंग dy by dt, वो कहाँ से निकालोगे? सिंस इक्वेशन पता है x² प्लस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट करो 2x इंटू dx by dt and then plus 2y into dy by dt equal to 25 का डिफरेंशिएशन 0, 2 से डिवाइड कर दो थ्रोट, देन वी विल गेट इट x का वैल्यू गिवन है आपके पास, दैट इज x वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर इनटू dx by dt गिवन है आपके पास 2 एंड देन प्लस 2 से डिवाइड कर दिया बच्चे, y का वैल्यू गिवन है 3 into dy by dt they are asking, now that is equal to 0 implies dy by dt equal to, देखो अपने आप नेगेटिव में आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। सो therefore height of wall is decreasing, ये लिखना जरूरी है, height of wall is decreasing at the rate 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा समझ आए बच्चे? यस नो बेटा, से यस नो, हाँ ना बोलो यार, यस हेलो।